Hello students, welcome to Neetu Agarwal classes. Today we are going to learn double column cash book. So let's just start it. Double column cash book. कैश बुक हम जानते हैं एक सिंपल लेजर और अकाउंट की तरह होता है. कैश अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट. ओके, और डबल कॉलम में हम क्या करते हैं, कैश एंड बैंक कॉलम. ओके, इट मीन्स we have two columns on the debit side and two columns on the credit side. Debit side cash column and bank columns for amount, and on the credit side also cash column and bank column for amount, credit amounts, right? So हमें ये पता है कि कैश तो कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है. ओके, बट बैंक कॉलम जो है नेगेटिव में भी अगर जा रहा है तो यस इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओवरड्राफ्ट. Okay, because of overdraft. This is the facility bank provides to us sometimes. Okay, so बैंक कॉलम हमें याद रखने की बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को कि बैंक कॉलम नेगेटिव बैलेंस हो सकता है बट कैश हम नेगेटिव कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. So the question is, prepare two column cash book from the following information. Now, what is the information given to us? It's 1st April 2020. ओके, अप्रैल मंथ के हमारे पास क्या कहते हैं एंट्रीज हैं. दैट इज कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन द बैंक. ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू मेक अ ड्राफ्ट फॉर द डबल कॉलम कैश बुक. लेट्स प्रिपेयर दैट. So the format is like this. In the books of XYZ, जो भी कंपनी का यहाँ पे नाम दिया होगा, जो भी फॉर्म होगी उसका नाम लिखेंगे. In the books of that so and so, 2 column cash book. You can write down double column cash book. You can write down 2 column cash book. Okay. So debit side date, particulars, ledger folio column. Cash amount, bank amount. Okay, on the credit side also date, particulars, ledger folio, cash amount and bank amount also. Okay, so let's start with the first entry. Here is on the 1st April, cash balance is 2000 and bank balance is 24,500, right? So these are the opening balances. It means we have balance brought down on the debit side on the 1st April. Okay, so what we need to record over here, 1st April, right, 2020. Okay, so to balance brought down, it means this is an opening entry, right? So cash balance is we are having 2000 rupees and bank balance is 24,500, right? Next entry is on the 2nd April, cash sales are 60,000, right? So cash sales, see, परचेज होती है तो हम पेमेंट करते हैं, दैट मीन्स वो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. बट दीज आर सेल्स, देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड. 2nd April to sales, right, to sales account. For how much cash sales है, right? Clearly हमें बताया गया है these are the cash sales. So we do entry of 60,000 in the cash column. Okay. So next entry is on the 5th April, deposited in bank. Okay. So this is the important entry. We have to make a note of this. Deposited in the bank 50,000. इट मीन्स बैंक अकाउंट में तो डिपॉजिट जमा हो रहा है बट वो डिपॉजिट कहाँ से आ रहा है, डायरेक्टली कोई थर्ड पार्टी तो डिपॉजिट नहीं कर रही है, वी आर डिपॉजिटिंग इट. ओके, सो इट मीन्स कैश इज गोइंग आउट. ओके, एंड बैंक इज कमिंग इन. Okay, so this is a kind of what entry? You remember this is a contra entry. Okay, contra entry is something कि बैंक और कैश की ही अदला बदली है, दोनों ही पॉकेट्स हमारी हैं. समझो हमारे पास कैश है या बैंक में है पैसा, दोनों ही एक ही बात है, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, लेट्स डू इट. सो ऑन द 5th April, okay, this is our debit side. So what is coming in? Bank is coming in. Okay, so
bank is coming in, but why? Due to cash account, right? Cash is depositing in the bank. Okay, so cash account debit by for what amount? For the amount 50,000. Okay, you can put like this on here, so not to get confused. So ये 50,000. ओके, ये 50,000 हमारे यहाँ पे डेबिट साइड पे तो इंक्रीज हो गए बैंक में कैश की वजह से, ड्यू टू कैश डिपॉजिट. बट हेयर ऑल्सो ऑन द 5th April you need to make an entry by bank. ओके, हमने क्या किया, जो हमारा कैश था वो बैंक में जमा करा दिया, तो यहाँ से कैश कम हो जाएगा. कैश कम होता है तो क्रेडिट साइड कम होता है, बट किसकी वजह से कम हुआ? ड्यू टू बैंक अकाउंट. ओके, सो दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री में हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि हम जब इस तरह की अकाउंट्स बनाते हैं तो हम लेजर फोलियो में ज्यादातर लेजर फोलियो डालते नहीं है, क्योंकि लेजर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा अकाउंट पर्टिकुलर किस पेज पे बनाया जा रहा है. बट कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम क्लियरली यहाँ पे क्या लिख देते हैं लेजर फोलियो में? सी. Okay, so we will remember this. So what? This is a contra entry, right? So इसके लिए अब हमें डबल कंफ्यूज कुछ होने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ एक ये है कि हमने कैश से निकाल के बैंक में जमा करा दिया, या बैंक से निकाल के कैश ले आए, विदड्रॉ कर लिया अगर ऑफिस यूज के लिए. सो इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री. दैट्स इट. वी नीड टू रिमेम्बर इट. सो यहाँ पे हम इसमें जनरली इस तरह से लिखते हैं. नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज ऑन द 7th April. अप टू हियर वी डन. इशूड चेक टू राम. ओके, इशूड चेक टू राम ऑफ 10,000. ओके, यानी कि चेक से हमने पेमेंट की है. ओके, टू राम, यानी बैंक से अकाउंट से पेमेंट, बैंक कॉलम से जो होगा वहां से हम इसको माइनस करेंगे टू राम. ओके ना, राम के लिए, राम अकाउंट के लिए. सो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड हम इसको करेंगे 7th April बाय राम अकाउंट, और हम क्या कर देंगे, बैंक से पेमेंट कर देंगे यहां से 10,000. ओके, यू कैन राइट डाउन हियर इन ब्रैकेट check bit, right? Now the next entry is on the 14th April. Sold goods to Sohan. Sold goods to Sohan. It means cash is coming in, we are selling. Okay, for 25,000. Cash 10,000 received. Okay, and the balance by check. Okay, allowed him discount rupees 100. ओके, सो हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है? सबसे मेजर इसमें सबसे पहले तो इसका एक तरह से वर्किंग नोट हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा. हमने उसे टोटल सेल की 25,000. ओके, उसके बाद 10,000 हमें रिसीव हो गया कैश. ओके, देन इसमें हमारा यहाँ पे बच गया 15,000. ओके, बट हमने उसे 100 डिस्काउंट भी दिया है. ओके, सो ये भी माइनस हो जाएगा. इट मीन्स इट इज 14,900. सो बैंक से जो पेमेंट आएगा, चेक से जो पेमेंट आएगा वो क्या आएगा, 14,900, क्योंकि कैश का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है. ओके, सो आप ये 100 बेशक से पहले माइनस कर दो या बाद में, आपको बैंक पेमेंट से इतना ही रिसीव होने वाला है. ओके, सो वी आर डूइंग द एंट्री. सो नाउ व्हाट वी डू ऑन द 14th April ऑन द डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट. कैश से कितना पैसा आया, 10,000 जो हमें कैश रिसीव हुआ, और 14,900 हमने डिस्काउंट माइनस करके निकाला अमाउंट. ओके, जो 100 रुपीज का हमें डिस्काउंट दिया हमने उसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक में कभी कोई एंट्री नहीं करेंगे. उसके लिए हम जर्नल में एंट्री करेंगे, या अलग से लेजर बनाएंगे उसका डिस्काउंट का. ओके, चाहे डिस्काउंट रिसीव हो चाहे डिस्काउंट अलाउड हो. ओके, क्लियर है? So our next entry is on the 16th April. Purchase furniture by check. ओके, सिंपल पेमेंट है. फर्नीचर हमने खरीदा है, पेमेंट किया चेक से. सो बैंक गोज आउट, फर्नीचर कम्स इन. हमें अभी सिर्फ क्या करना है, कैश बुक की एंट्रीज करनी है. सो हम क्या करेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे. तो हमारे पास 2 कॉलम्स है, कैश एंड बैंक. हमें सिर्फ इस बुक डबल कॉलम कैश बुक में यही याद रखना है कि हम
पेमेंट या रिसिप्ट किस तरह से ले रहे हैं, कैश या बैंक. ओके, सो अकॉर्डिंगली हम कैश कॉलम या बैंक कॉलम में एंट्री करेंगे. सो नाउ ऑन द क्रेडिट साइड for 16th April you have to put the date on here by furniture account, for cash column. कैश से पेमेंट नहीं करी है हमने, so you can put the dash over here so that you will not get confused. Okay, so buy furniture for how much amount, for 10,000 rupees. So our next entry is 18th April, sold old furniture for cash 10,000. Okay, it means old furniture, हम ये assume करेंगे ये business का ही part है. Okay, so cash comes in, furniture goes out. So what we need to record over here, only for cash account. So what we need to do the entry on 18th April on the debit side to furniture. You can write down over here old scrap, right? So for how much we received 10,000 cash for that. Done. Now the next entry is we are done with the okay up to here. On 26 April, bank charged bouncing charges. Okay, it means कि हमने कोई चेक दिया था या किसी और का चेक हमारे अकाउंट में आया था जो कि बाउंस हो गया, राइट. हमने जो चेक दिया वो बाउंस हो गया तो उसके बैंक चार्जेस ले लेता है इसमें. तो बैंक चार्ज करता है तो वो हमारा क्या कहते हैं अकाउंट से वहाँ पे माइनस हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक गोज आउट. ठीक है, अब वो हमें से कैश तो लेने आएंगे नहीं, वो बैंक के में जो हमारा अकाउंट है उसी में से अमाउंट माइनस हो जाता है. तो हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड बैंक कॉलम से हम चार्जेस माइनस कर देंगे. सो नाउ हियर ऑन द क्रेडिट साइड 26 April we can write down here by bouncing charges or bank charges. Okay, इसके लिए वो कभी भी बताएंगे नहीं कि हम कैश से कर रहे हैं बैंक से. इट इज ऑटोमेटिक और इट इज कॉमन कि वो हमसे कैश चार्जेस लेने के लिए अलग से नहीं आएंगे, वो हमारे अकाउंट जो हमारा वहां पर है उसी में से माइनस कर देंगे. ओके, सो बैंक चार्जेस कभी भी आते हैं या बैंक से कोई इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है हमारे अमाउंट पे, तो वो हम बैंक कॉलम में ही एंट्री करेंगे उसके लिए. Now the next entry is 28th April. Bank paid insurance premium as per the instructions for ₹3,000. ओके, कई बार ऐसा होता है ना, हमारी कुछ EMIs है या लोन पेमेंट्स हैं, कोई भी इस तरह का प्रीमियम है जो हमारे अकाउंट से इंस्टॉलमेंट निकलती रहती है, राइट. तो ये उसी तरह की एक इंस्टॉलमेंट है जो कि बैंक से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. ओके, सो हमें क्या करना है, 28th April ऑन द क्रेडिट साइड 28th April. ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट फॉर हाउ मच अमाउंट, दैट इज फॉर 3,000. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज 29 April. Withdraw. Okay, you can write on anything over here. Withdraw 2,000 rupees for office use. Again, this is a contra entry, right? कि हमने withdraw किया 2,000 rupees for office use. Okay, so office use, देखिए कितना शॉर्ट में लिखा है और कितना ट्रिकी है कि हमने, यानी कि ये जो ऑफिस में पैसा है उसको तो हमें ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ऐसा तो है नहीं कि हम ड्रॉअर से पैसे निकालेंगे और उसे हम कहेंगे हमने पैसे निकाल लिए. नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ ये कहना चाह रहा है कि बैंक से पैसा निकाला गया है 2,000 rupees फॉर द ऑफिस यूज. इट मीन्स बैंक इज गोइंग आउट एंड कैश इज कमिंग इन. सो अगेन इट इज अ contra entry. So on the 29th April, what is coming in? Cash is coming in due to bank account. For how much amount? For the 2,000 rupees. Okay, so we put here, and on the credit side what goes out? कम क्या हो रहा है? Bank goes out. Okay, so due to cash, by cash account here, and bank goes out. So for how much amount?
it is for again 2000 rupees. So bank is going out but cash is coming in. Okay, cash is coming in and bank is going out. So again it is a contra entry. So we need to put here over C symbol for the contra entry. So now it is also done. 30th April, paid salary by check. Okay, salary is an expense we are paying out, but paying out through check. It means bank is going down. Okay, so on the 30th April, by salary account, we are paying out 25,000 through bank column. Okay, so bank column से minus कर देंगे 25,000. I hope this is clear. Now what we need to do, we need to balance it. Okay, so balance कैसे करेंगे? कैश कॉलम को कैश कॉलम से बैलेंस करेंगे, बैंक कॉलम को बैंक कॉलम से बैलेंस करेंगे. ओके, सो वी आर डन विद बैलेंसिंग. यहाँ पे भी डेबिट कॉलम ही ज़्यादा था और इधर भी हमारा डेबिट कॉलम ही ज़्यादा है. ओके, वी डू द टोटल एंड वी गेट द बैलेंसेज ओवर हियर. 34,000 फॉर कैश एंड 50,300 रुपीज़ फॉर bank account. So we need to brought down over here. This is on 30th April. Okay, and next you are doing it like this. 1st May to balance brought down. Okay, how much cash balance is 34,000. So you need to write down here in cash column. And what is the credit bank balance? 50,300. Okay, so we are done with the double column cash book. I hope you understand these entries. Thanks for watching.